Hello students. So today I am going to solve the homework problems that I have given you on 24th May 2020. So let us start the solution of given homework problems. So here was the first question. The first question was, let x, y, z be non-negative real numbers such that x into y into z equal to 1. Prove that x cube plus twice y into y cube plus twice z into z cube plus twice x is greater than equal to 27. Okay, so x and x, y, z are non-negative real numbers, so they may be 0 also. I don't know. Non-negative includes 0, and it is given that x into y into z equal to 1. We have to prove the given equation, inequality actually. So let the left hand side be e. So let e equal to x cube plus twice y into y cube plus twice z into z cube plus twice x. I am breaking twice y as y plus y, twice z as z plus z, and twice x as x plus x. Okay. Now let us apply the AMGM inequality on x cube, y and y. So what we see is that x cube plus y divided by 3 is greater than equal to cube root of x cube into y. So आप 3 को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, what we get, x cube plus twice y is greater than equal to 3x into y to the power 2 by 3. ठीक है, give it equation number 1. Similarly, again we will use the AMGM inequality on y cube, z and z. So what we say is that y cube plus z by 3 is greater than equal to cube root of y cube into z. So from there we are getting y cube plus twice z is greater than equal to 3 into y into z to the power 2 by 3. Okay, give it equation number 2. Applying AMGM inequality on z cube x, what we see, z cube plus x by 3 is greater than equal to cube root of z cube into x. From there we are getting z cube plus twice x is greater than equal to 3z into x to the power 2 by 3. Give it equation number 3. Now we want the multiplication of all this. So what we see is that multiplying 1, 2 and 3, what we get, x cube plus twice y into y cube plus twice z into z cube plus twice x is greater than equal to 27 into xyz into x to the power 2 by 3 था, y to the power 2 by 3 था, z to the power 2 by 3 था. So x into y into z whole to the power 2 by 3, but x into y into z के ऊपर कुछ भी power हो doesn't matter because it is given in the question that x, y, z equal to 1. So finally we are getting the required result. So let us move toward the next question. What was the next question? The next question was, if a, b, c, d are real numbers such that a greater than b, greater than c, greater than d, greater than 0, all are positive real numbers, and a is greater than b, b is greater than c, c is greater than d, and a plus d is equal to b plus c, it is given. We have to prove that a plus b minus c plus d divided by root 2 is greater than root over a square plus b square minus root over c square plus d square. तो देखो मैंने नाम यहाँ पे दिया हुआ है ना कि a b से बड़ा है, तो मैंने a को ले लिया n प्लस के और b को ले लिया n, और c d से बड़ा है तो c को ले लिया मैंने m प्लस के एंड d को ले लिया मैंने m, वेयर यहाँ पे जो k है दैट इज ग्रेटर देन 0, एनी रियल नंबर, k इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एंड n इज ग्रेटर देन m, and both are positive because a b c d all are positive, so n and m must be greater than 0, and in fact n is greater than m plus k also because a is greater than c na, so n is greater than actually m plus k, but इसको लिखना ना लिखना इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने n greater than सिर्फ m ही लिखा. ठीक है, but you can, if you want, you can write n is greater than m plus k, but writing this has no use in the subsequent steps, so I have not written it. So n is greater than m and it is greater than 0. All things are positive, all are positive real numbers. यहाँ पे मैंने a b c d का नाम n plus k n m plus k m इसलिए दिया ताकि मुझे नेक्स्ट स्टेप में कुछ फ़ायदा हो, कुछ मैं कंक्लूड कर सकूँ फॉर दोज गिवन रियल नंबर्स ए बी सी डी, एक्चुअली पॉजिटिव रियल नंबर्स. सो व्हाट आई सी इज़ दैट बी सी माइनस ए डी क्या होता है, ये जो मैंने n प्लस के n m प्लस के m लिखा, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गिवन कंडीशन दैट ए बी सी डी ऑल आर पॉजिटिव. ठीक है, ए बी सी डी ऑल आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड फ्रॉम देयर ओनली आई हैव रिटन दिस. ये देखो यहाँ पे गिवन है
कि A, B, C, D all are positive real numbers, and from there I have written this n plus k, n, m plus k, m like this. Okay, so next what we see is that BC minus AD equal to BC, B का वैल्यू बिठाओ n, C का वैल्यू बिठाओ m प्लस k, D A का वैल्यू बिठाओ n प्लस k एंड D का वैल्यू m बिठाओ. बिठा के आप सिंप्लीफाई करो, हमको क्या मिला k into n minus m, and k into n minus m is definitely greater than 0 because k is positive and n is greater than m. As n is greater than m, so n minus m will be positive. So this quantity is positive. BC minus AD is a positive real number. पॉजिटिव है, इसका भी कुछ इतना यूज़ नहीं है. द मेन यूज इज BC minus AD is non-zero. There is the main thing I am going to use in the next step, that BC minus AD is non-zero. पॉजिटिव हो गया, चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ना लिख के सिर्फ नॉट इक्वल टू 0 लिखता तब भी काम चलता. ठीक है, सो लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप. सो BC minus AD इज ग्रेटर देन 0. दिस इम्प्लाइज BC minus AD होल स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. तो अगर मैं यहाँ पे BC minus AD जो आया था हमारा k इंटू n minus m, इसको सिर्फ नॉन जीरो लिखता तब भी उसका होल स्क्वायर जो है पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि आप नेगेटिव का स्क्वायर करो, पॉजिटिव का स्क्वायर करो, आंसर हमेशा स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा. सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. तो BC minus AD होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. इसको A minus B होल स्क्वायर के फॉर्मूला से तोड़ने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करो. व्हाट वी गेट, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इंटू D स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्वाइस BC इंटू AD. नाउ एडिंग बोथ साइड, S स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, दोनों तरफ आप S स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू D स्क्वायर को ऐड करो. करने के बाद क्या मिला आपको, इन द लेफ्ट हैंड साइड आपको फैक्टराइजेशन करना है और इन द राइट हैंड साइड इट इज़ AC प्लस BD होल स्क्वायर. ठीक है, तो इन द लेफ्ट हैंड साइड मैंने फैक्टराइजेशन किया और इन द राइट हैंड साइड AC प्लस BD होल स्क्वायर हो गया. तो उसके बाद स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड का जो स्क्वायर है उसको आप लेफ्ट साइड में लेके आओ. वी आर गेटिंग रूट ओवर S स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज ग्रेटर देन AC प्लस BD. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -2. इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव क्वांटिटी द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट्स चेंज्ड. तो यहाँ पे साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज हो गया. तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, मैंने थोड़ा अरेंज करके लिखा. यहाँ पे था -2 इंटू रूट ओवर S स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज लेस देन -2 इंटू AC प्लस BD. मैंने थोड़ा घुमा के लिखा उसको, -2 AC -2 BD इज ग्रेटर देन -2 इंटू रूट ओवर S स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. नाउ एडिंग बोथ साइड S स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, मैंने दोनों तरफ S स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ऐड किया. करने के बाद इन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर गेटिंग A minus C होल स्क्वायर प्लस B minus D होल स्क्वायर एंड इन द राइट हैंड साइड वी आर गेटिंग रूट ओवर S स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू रूट ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मिला A minus C होल स्क्वायर प्लस B minus D होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में मिला रूट ओवर S स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस रूट ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, तो आप स्क्वायर को फिर से अब B minus D इज इक्वल टू A minus C, क्योंकि इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट, ये क्वेश्चन का गिवन पार्ट है, दिस पार्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन that A plus D is equal to B plus C. From there we are writing A minus C equal to B minus D and I am using this result here also. यहाँ पे मैंने जहाँ पे B minus D था यहाँ पे मैंने यहाँ इसको A minus C लिखा. ठीक है, तो क्या मिला हमको, 2 इंटू A minus C होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन रूट ओवर S स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस रूट ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर. तो स्क्वायर को उस तरफ लेके आओ, राइट लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा आके. तो रूट ओवर 2 इंटू A minus C इज ग्रेटर देन रूट ओवर S स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस रूट ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. दोनों तरफ पॉजिटिव है. लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वांटिटी इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 और राइट हैंड साइड का भी जो क्वांटिटी इट इज ग्रेटर देन 0. एक्चुअली जब हम रूट को इधर उधर लाते हैं तो मोड साइन देते हैं, बट यहाँ पे मोड देने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जब हम लिखते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू हम जो x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो व्हाट वी राइट इज़ दैट x इक्वल टू मोड y. या फिर जब भी स्क्वायर रूट उस तरफ जाता है, साइड चेंज होता है, तो हम प्लस माइनस देते हैं या फिर मोड देते हैं. लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बिकॉज बोथ द क्वांटिटी इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर पॉजिटिव. अभी क्या मिला हमको, रूट ओवर 2 इंटू A minus C इज ग्रेटर देन रूट ओवर S स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस रूट ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. अभी जो लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वांटिटी है ना, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आपको क्वांटिटी दिख रहा है, इसको आप ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट 2. देन व्हाट वी गेट, रूट 2 इंटू रूट 2 ऊपर में 2 हो जाएगा और नीचे में एक रूट 2 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में जो था वही है. तो आपके ऊपर में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर में है A-2 इंटू A minus C, सो इट इज़ A minus C प्लस A minus C एंड राइट हैंड साइड के जैसा वैसा. अभी A minus C इज इक्वल टू B minus D, पहले भी देखा है, तो A minus C की जगह में मैंने B minus D लिखा. उसको थोड़ा सा अरेंज करो, वी आर गेटिंग आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. ओके,
So this was our next question. This was our question number 2. Okay. So the inequality part is little bit difficult than the first question. First question inequality question was very much easy. Second question is little bit difficult. But this is what about RMO, INMO and PRMO is. Now next question. The next question was find all primes P and Q such that P square plus 7PQ plus Q square is the square of an integer. आपको सब प्राइम्स निकालना है P और Q such that P square plus 7PQ plus Q square जो होगा ये स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होगा. ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होगा. एंड टू बी मोर प्रिसाइज आई एम सेइंग दैट इंटीजर इज नथिंग बट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि P और Q अगर प्राइम है दैट मीन्स दे आर पॉजिटिव, है कि नहीं. अगर P और Q अगर प्राइम है दैट मीन्स दे आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो P स्क्वायर प्लस 7PQ प्लस Q स्क्वायर इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, इट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर. तो मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट P स्क्वायर प्लस 7PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर वेयर P, Q आर प्राइम्स एंड M बिलोंग्स टू Z प्लस. ठीक है, द रीजन ऑफ राइटिंग M टू Z प्लस इज दैट P and Q are primes and hence they are positive integers. ठीक है, तो P square भी positive integer, 7PQ भी positive integer, Q square भी positive integer and their sum is also a positive integer, and that is why I have written that M is a positive integer, though it is mentioned in the question that is square of an integer, but to be more precise it is square of an positive integer because P, Q are positive integers and whatever the expression is all about their sum and it is again a positive integer. So I have written where P, Q are primes and M belongs to Z plus. Z denotes set of integers and Z plus denote set of positive integers. Now what I have done is that मैंने जो given expression है यहाँ पे P square plus 7PQ plus Q square, इसको मैंने थोड़ा simplify किया करके लिखा P plus Q whole square plus 5PQ, we can easily write. तो इक्वल टू M स्क्वायर, तो 5PQ इक्वल टू हो गया M स्क्वायर माइनस P प्लस Q होल स्क्वायर एंड द एक्सप्रेशन द राइट हैंड साइड इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर टाइप, सो इट इज A प्लस B इंटू A माइनस B. इस फॉर्म में मैंने लिखा. तो लेफ्ट हैंड साइड का जो 5 इंटू P इंटू Q है दैट इज द लार्जेस्ट फैक्टराइजेशन वी कैन हैव. 5 इज ए प्राइम नंबर, P is a prime number, Q is a prime number, so that is the only possible factorization that we can have. We cannot factorize the left hand side anymore. हम लेफ्ट हैंड साइड को और फैक्टराइज नहीं कर सकते. दैट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल फैक्टराइजेशन वी हैव बिकॉज 5P and Q ऑल आर प्राइम्स. नाउ अभी व्हाट आर द पॉसिबल केसेस दैट वी कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन. जो हमारा लास्ट इक्वेशन जो मिला, ये लंबा जो इतना इक्वेशन मिला, व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स दैट वी कैन राइट फ्रॉम दिस स्टेप इज दैट कि देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो फैक्टराइजेशन दैट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल फैक्टराइजेशन, राइट हैंड साइड का जो फैक्टराइजेशन है दैट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट पॉसिबल फैक्टराइजेशन. आप अभी इक्वेट करो कि व्हाट आर द पॉसिबल केसेस दैट वी कैन राइट. दोनों तरफ का फैक्टराइजेशन एकदम जितना कर सकते हैं कर लिया. अभी आप दोनों तरफ को इक्वेट करके देखो क्या क्या मिल सकता है. व्हाट आर द पॉसिबल केसेस दैट वी कैन हैव. द फर्स्ट केस इज इफ आई से दैट M प्लस P प्लस Q इक्वल टू P, देन P दोनों तरफ कैंसिल होकर आ गया M प्लस Q इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज M एंड Q आर बोथ नेचुरल नंबर्स. तो दो नेचुरल नंबर गेट करके कभी 0 नहीं मिलेगा, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. सिमिलर गोज विद M माइनस P माइनस Q. ठीक है, यू कैन राइट दिस ऑल्सो, यू विल गेट सम कॉन्ट्रोडिक्टरी रिजल्ट. नाउ what we see is that if M plus P plus Q equal to Q, then दोनों तरफ Q कैंसिल हो गया, तो क्या मिला M plus P equal to 0, which is again not possible. ठीक है, which is again not possible because M and P are positive integers. If M plus P plus Q equal to 5, then what we see is that M is greater than P and greater than Q. M is greater than P, M is greater than Q also. Why? Because what is M square? M square is, we are getting M square by adding P square plus 7PQ plus Q square. आप सबको इतना सबको सम करके P स्क्वायर किया, Q स्क्वायर किया, प्लस 7PQ किया, उसके बाद आपको M का स्क्वायर मिला, है कि नहीं. तो डेफिनेटली M इज ग्रेटर देन P एंड Q, दोनों से बड़ा है.
क्योंकि पी स्क्वायर इज ग्रेटर एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन पी स्क्वायर एंड हैंस एम इज ग्रेटर देन पी, एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर एंड हैंस एम इज ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, दोनों तरफ पॉजिटिव ही है, सो मोड डॉट कुछ आएगा नहीं। फ्रॉम दैट गिवन एक्सप्रेशन वी कैन राइट, जो एक्सप्रेशन हमने पहले लाइन पे लिखा है कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 7pq प्लस क्यू स्क्वायर, दैट obviously implies that m square is greater than p square and also greater than q square, and from there we can write m is greater than p and it is also greater than q. Now what we see is that m plus p plus q equal to 5 and m is greater than p and m is greater than q also. लेकिन p और q क्या है? p और q प्राइम नंबर से, तो एटलीस्ट इनका वैल्यू कितना होगा 2। सबसे छोटा वैल्यू अगर मैं ले लूँ p और q का, दैट विल बी 2 and 2। तो अगर p का वैल्यू 2 है, q का वैल्यू 2 है, तो 2 + 2 तो 4 हो गया। तो m का वैल्यू कितना होना पड़ेगा इसको सेटिस्फाई करने के लिए? 1, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि m तो p और q दोनों से बड़ा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? That is what I have written, that m is greater than p and m is greater than q and p and q are at least 2। दोनों को कम से कम 2 होना पड़ेगा ही पड़ेगा। At least the value of p and q must be 2 because they are prime, which is again not possible because the sum will exceed 5। तो m का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप m का वैल्यू p और q से बड़ा कुछ लेते हो तो वो 5 से ज़्यादा होगा, सम 5 का भी हो ही नहीं सकता। तो दैट केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, यू कैन डू द सिमिलर थिंग विथ m minus p minus q। व्हाट आई हैव डन विथ m plus p plus q, you can done the same thing with m minus p minus q and you will definitely get some result which will not possible। ठीक है, which will not possible। if you face any problem you can ask me and you can try with what I written for m plus p plus q। you can similarly try it with m minus p minus q, you will get some contradictory result like what we have got for m plus p plus q। ठीक है, if you face any problem you can contact me। Now let us consider the some more cases, जितना पॉसिबल केस हो सकता है। एक बार चलो मैं पॉसिबल केस डिस्कस कर ही देता हूँ कि व्हाट आर द पॉसिबल केसेस। तो मैंने एक बार m plus p plus q को p लिया, q लिया, 5 लिया, तीनों बार एक कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट मिला जो कि हो नहीं सकता। अभी मैं m plus p plus q को 5p लूँगा, 5q लूँगा और pq लूँगा, 5pq लूँगा, सब लूँगा। जो काम हम m plus p plus q के लिए कर रहे हैं वही सेम काम आप m minus p minus q के लिए कर सकते हो। बट करने के बाद क्या मिलेगा? अगर आप m minus p minus q के लिए करोगे, either you will get the same result what we are getting in m plus p plus q or you will get some absurd result। ठीक है, you can check it, any step, any problem, contact me। Now let us see what we are getting by equating m plus p plus q with 5p, pq and 5q, and at last I will see for 5pq also। so let us see what we are getting। so consider the case m plus p plus q equal to 5p and m minus p minus q equal to q। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो 5q पे होना पड़ेगा कि नहीं? द प्रोडक्ट इज 5pq, सो अगर m plus p plus q equal to 5p हुआ then m minus p minus q must be q। okay, so from there what we are getting, eliminate m from these two equations। ये जो दो इक्वेशन मिला है ना, ये दो एक इक्वेशन मिला और ये दूसरा इक्वेशन मिला, यू एलिमिनेट m फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन 1 and 2। क्या मिलेगा आपको? मैंने यहाँ पे सेपरेट किया, तो m plus p plus q minus m minus p minus q is 5p minus q and from there what we are getting p equal to q। ठीक है, एक रिजल्ट हमको मिला कि p और q इक्वल है। तो यू अंडरलाइन दिस रिजल्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट कि p और q जो है सेम है। ठीक है, p and q are same। let me underline it more clearly। this is the important result we are getting, that p is equal to q। ठीक है, now consider the another case, that m plus p plus q equal to 5q and then m minus p minus q must be p because the product is 5pq। now eliminate m from these two equations, what we are getting, we are again getting p equal to q। ठीक है, तो दोनों केस में हमको क्या मिला? दोनों केस में हमको p equal to q मिला। वी आर सर्चिंग व्हाट? वी आर सर्चिंग फॉर द प्राइम्स p and q। हमारा क्वेश्चन है आप प्राइम्स p और q क्या क्या हो सकता है निकालो, सच दैट क्या हो, p स्क्वायर प्लस 7pq प्लस q स्क्वायर जो हो वो एक स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हो। ठीक है, तो यहाँ से दो कंडीशन मुझे मिला कि p और q अगर इक्वल होता है तो
पी स्क्वायर प्लस 7pq प्लस क्यू स्क्वायर जो है वो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होता है. इन फ्रॉम द टू केसेस आई हैव गॉट द रिजल्ट दैट इफ p इज इक्वल टू q then p square plus 7pq plus q square is square of an integer. Now let's see the final case. Finally consider the case m plus p plus q equal to pq and m minus p minus q equal to 5 because the product is 5pq तो एक अगर pq होगा दूसरा 5 होना पड़ेगा. So from there what we are getting, eliminate m from these two equations, we are getting that 2p plus 2q is equal to pq minus 5. इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फैक्टराइज भी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो PQ था मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जो PQ माइनस 5 जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ और बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाओ. लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करो. व्हाट वी गेट, PQ माइनस 2P माइनस 2Q इज इक्वल टू 5. दोनों तरफ 4 ऐड करो तो PQ माइनस 2P माइनस 2Q प्लस 4 इक्वल टू 5 प्लस 4 9. सो यहाँ पे फैक्टराइज करने के बाद क्या मिला, P माइनस 2 इंटू Q माइनस 2 इक्वल टू 9. नाउ व्हाट आर द possible expression that we can express 9, that 9 is equal to 9 into 1, 9 is equal to 1 into 9, 9 is equal to 3 into 3. There are no possible और कुछ possible way नहीं है. There is no any other possible way to write express 9. 9 को फैक्टराइज करने का यही तीन तरीका है. Either you write 1 into 9 or 9 into 1 or 3 into 3. तो from there what we get, P minus 2 into Q minus 2 equal to 3 into 3. From there P minus 2 equal to 3 and Q minus 2 equal to 3, so P equal to Q equal to 5. नेक्स्ट और मैंने लिखा दूसरे साइड पे कि p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 2 इक्वल टू 9 इंटू 1. फ्रॉम देयर यू इक्वेट p माइनस 2 इक्वल टू 9 एंड q माइनस 2 इक्वल टू 1. फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग p इक्वल टू 11 एंड q इक्वल टू 3. और दूसरा पॉसिबल केस क्या है, p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 2 इक्वल टू 1 इंटू 9. फ्रॉम देयर यू विल गेट p माइनस 2 इक्वल टू 3 एंड q माइनस 2 इक्वल टू 11. सो क्या क्या पॉसिबल केस हमको इससे मिला. पहला दो केस क्या था, इससे मिला था कि p और q दोनों इक्वल हो. फॉर द फर्स्ट टू केसेस व्हाट वी हैव सीन दैट p एंड q इक्वल हो. इन द थर्ड स्टेप व्हाट वी सी दैट PQ दोनों इक्वल है 5 है. और PQ क्या क्या हो सकता है, P3Q11 और P11 Q3. द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P और Q आर 3 एंड 11. P का वैल्यू 3 होने से Q का 11 होगा, P का वैल्यू 11 होने से Q3 होगा. सो द सोल्यूशन क्या मिला आपको फ्रॉम ऑल दिस पॉसिबल केसेस, व्हाट वी सी इज दैट P और Q दोनों इक्वल हो. PQ इक्वल टू 5 जो है, ये जो हमारा मिला ना, दैट इज ए पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस सोल्यूशन. प्रीवियसली दोनों केस में क्या किया, P इक्वल टू Q किया, इसमें P इक्वल टू Q इक्वल टू 5 मिला. तो मिलने दो, P और Q इक्वल है तो वो तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है. P और Q इक्वल है. P और Q क्या है, प्राइम नंबर से. सो दे आर इक्वल. सो व्हाट कैन दे आर बी 2, 3, 5, 7, 11 एनीथिंग. सो यहाँ पे 5 आया, आने दो, अच्छी बात है. तो द सोल्यूशन सेट क्या मिला आपको, द फाइनल सोल्यूशन सेट इज यू हैव टू राइट दिस आंसर. You have to write, at last you have to write this answer. Okay, you have to write this answer. One of the students showed me the solution today and correctly done. I must say it was correctly done. But the ending should be like this. Okay, the ending should be like this. Does the solution, the set of solution is, जो solution आपको मिला, एक ही solution नहीं मिला या दो solution नहीं मिला, आपको set of solutions मिला. तो what is that set of solutions? The set of solutions is P, P where P is a prime. क्योंकि P और Q इक्वल था ना, हमको क्या मिला था कि P और Q इक्वल है, तो इसलिए मैंने P, Q नहीं लिखा. इन प्लेस ऑफ Q आई हैव रिटन P, P where P is a prime. You can put any value of P and Q such that they are equal. 2 बिठाओ, P square plus 7PQ plus Q square will be square of an integer. P का value 3, Q का value 3 बिठाओ, you will see that P square plus 7PQ plus Q square is the square of an integer. Like this you can put P का value 11, Q का value 11 बिठाओ, you will get P square plus 7PQ plus Q square is the square of an integer. And like this, अगर P का value of 3 बिठाओ, Q का value 11 और P का value 11, Q का value 3, you will also get it is a square of an integer. So this is the answer. Now you may ask, sir, why you have not done the case that m plus p plus q equal to 5pq and m minus p minus q equal to 1. So let me do that for you also. Okay, so let me do that case also. So note that if we choose m plus p plus q equal to 5pq and m minus p minus q equal to 1, then what we get, then eliminating m from these two equations, we get 2p plus 2q equal to 5pq minus 1. And from there, if you keep on factorizing, after factorizing you will get that 5p minus 2 into 5q minus 2 is equal to 9. And the possible cases of factorizing 9 are 3 into 3, 1 into 9 and 9 into 1. And from there we will get the p equal to q equal to 1. ठीक है, तो p equal to q equal to 1 आया. और दूसरा क्या आया, but if you put 1 there, what we see that
1 is not satisfying because the question is given in the 1 बिठाने से होता है, अगर p का बोलो 1 बिठाओ, q का बोलो 1 बिठाओ, तब भी 1 square plus 7 plus 1 9 होता है, which is 3 square, but it is given in the question that p and q are prime, so we are not considering this case. Otherwise 1 also satisfies this equation, that 1 square, this is 1, 7 pq, 7 into 1 into 1 7, and 1 square 1, so it is 9. But it is, as it is given that p and q are prime, so we are not interested in p equal to q equal to 1. And the other solutions we are getting in fraction which are not prime numbers, so this case is not possible. And for note I have written that m plus p plus q is greater than m minus p minus q, and that is why we are choosing like this, that we are, see, if you see my solution, I have always written that m plus p plus q equal to 5p and m minus p minus q equal to q. मैंने बड़ा वाला को हमेशा, मतलब I don't know the values of p and q, but still जो देखने में बड़ा लग रहा है मैंने इसी को m plus p plus q लिया, और जो देखने में छोटा लग रहा है मैंने उसको m minus p minus q लिया. Are you getting my point? I have chosen, that is why I have written a note in the last that m plus p plus q is greater than m minus p minus q. सो जितना भी मैंने वैल्यू मैंने लिया कि m प्लस p प्लस q को मैंने 5 पे लिया, तो m प्लस m माइनस p माइनस q मैंने q लिया. कभी मैंने m प्लस p प्लस q को 5q लिया, तो m माइनस p माइनस q को मैंने p लिया. तो हमेशा जो देखने में बड़ा हो रहा है इसको मैंने m प्लस p प्लस q लिया, और छोटा वाला मैंने उसको दे दिया. आई डोंट नो छोटा बड़ा कौन है, बट स्टिल जो देखने में लग रहा है जो, बट द थिंग इज वट एवर values we have chosen for m plus p plus q, we have got an answer. You can repeat the same thing for m minus p minus q. जैसे कि आप सोच सकते हो ना कि मैंने m plus p plus q को मैंने 5 पे लिया, तो m minus p minus q को 5 पे क्यों नहीं लिया. You can choose and you can do the solution. You will get some absurd result. ठीक है, तो that is why I have not written it, but you can choose similarly what you have chosen for m plus p plus q, and you can see what the result is coming. For any difficulty you can ask me anytime. So this was the solution of our previous homework problems. Okay, so note down it, and hope you all are fine. Be safe. Thank you.